Yes. So now in the last class I have given what one question as a homework, but most of you are not able to understand that question, or not understand is not a point, not able to solve. So that question first I will discuss. Visual paradigm. Visual paradigm on visual paradigm login. Click on here, login visual paradigm online. So already I have explained how to log in. So here, click on Google. If you have the username, that is email ID and password, here only you can write and click on login. But I don't want this option is also there. Click on Google. Click on Google, and here just select this one. Screen. So just one interface will come, and there you need to write your username and password. Now click on next. Now wait for a minute, it is redirecting to a different page. Just wait everyone. Now see here, click on open, click on new, here diagram, click on diagram. So diagram here, see everyone, in the search box, flow chart, enter flow chart, click on enter button. So select this flow chart, select this one. So today is the last class for this month, but algorithm and flow chart chapter. Now, so what is the question I have given is, see here everyone, question is write a flow chart or draw a flow chart, flow chart in order to determine the in order to determine the, either we can take a smallest number, draw a flowchart in order to determine the smallest number among three given number, among three given number. So this is the question I have given. Yes or no? यही क्वेश्चन दिए थे ना? Yes, sir. But most of you are not able to solve it. Why? Because logic is very weak, math is very weak. So how we can solve this? So see here everyone. So suppose in the flowchart we will take what? Three input A, B and C. अब A, B, C ले सकते हैं. तो see here what are the different possibility? Suppose मैंने A का वैल्यू 11 लिया और B का वैल्यू 12 लिया और C का वैल्यू 13 लिया. So see here A value 11, B value 12, C value 13. Now another case C. Another case. So here A is a smaller. Why it is smaller? Because A is less than B and A is also less than C. ये smallest तभी होगा जब ये A जो है B से भी छोटा होगा और A जो है C से भी छोटा होगा. तो see here 11 is less than 12 and 11 is less than 13. So A is less than, means smallest here. Now another case if you take, suppose A value is 13, B value is 10 and C value is 11. Now see here B value is the smallest here. Why? It is less than A and it is less than C also. Yes or no? Now next consider here 11 is there, here 7 is there and here 5 is there. Now in this case this one is the smallest. Why? This one is less than B and this 5 is also less than 11. Yes or no? So try to understand here everyone. In the first case A smallest तभी है when it is less than B and ये तभी less है A is less than B as well as A is less than C. ठीक है ना? इस केस में देखिएगा A B से भी छोटा और A C से ही छोटा, तभी जाके A क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर बन रहा है. Here if you see B is the smallest. So B is smallest means what? A is greater than B and here again B is smallest means B is also less than C also.
So B यहाँ पे smallest है, A से भी B less than है and B less than C also. Here come to here. So C is the smallest. That means what? C is less than A as well as this is what? AND operator. C is also less than B. समझ में आ रहा है? C क्या है? A से भी छोटा है और C B से भी छोटा है, तभी जाके C क्या होगा? Smallest होगा. Yes or no? ये पॉइंट समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. Now come in the flow chart here. How we can draw the flow chart for this? So every flow chart starts with this start symbol. Now here, take start. Terminal box. So start here. Started flow chart. Now after this, we have to take 3 input. Yes or no? Just wait for a minute. The input will come here. Input. Suppose we are taking the input as input A, B, and C. Okay, again take the input as B. B. Again the input is B. Now again we can here again take the input as C. Input as C. Okay, so these are what? A, B, C are 3 inputs. Start input A, input B, input C. Yes or no? So these are 3 different input. Now see here. So first try to understand here. This one. अब हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. हम लोग कोई एक केस को लेके अभी बढ़ेंगे. एनी वन केस वी विल स्टार्ट विथ एनी वन केस वी विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है ना? हम लोग कोई भी एक केस ले सकते हैं. सो इसको हम पहले लेते हैं. ठीक है ना? A is less than B and A is less than C. तो ऑटोमेटिकली A क्या होगा उसमें? स्मॉलेस्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना? इस वाले केस को लेते हैं. Yes, sir. Now see here, 3 different cases are there. Out of that, you can take any one. So now I am taking here. What I am taking means I am checking here. Taking means what? I am checking here. What is A? A is less than B. क्या A B से small है? And again I am here. This one is what? AND operator. साथ में AND मतलब हम लोग 2 कंडीशन साथ ही में चेक कर रहे हैं. क्या A B से छोटा है? And here everyone, is A is less than B and A is less than C. A is less than A is less. We are checking here. Is A less than B and A less than C? Yes or no? So this is our condition here. Our condition is whether A is less than B and A is less than C. A और B दोनों क्या है? कंडीशन हम चेक करा कि ये A B से छोटा है कि नहीं and A is less than C. Okay. So again this one is what? A conditional box. So conditional box is what? Either it will return true or false. Yes or no? Yes, sir. So suppose it is returning true. True return करने का मतलब क्या हुआ? अभी हम आपको ये दिखाए थे. If it will, अगर ये true return कर रहा है का मतलब क्या हुआ? सी यहाँ पे आप समझिए. A less than B and A less than C. So अगर A less than B हो और A less than C नहीं हो, try to understand here. 3 different from here also C here. Next one. So suppose the value of A is like this. A value is 4. So A value is 4. So A is less than B. So suppose A is less than B is returning true. ये true return कर रहा है. That means what? A is less than B means suppose I am taking B value as 3. 4 is less than, so B value suppose I am taking 5. Okay, so what? A में 4 है, B में 5 है. So A is less than B means it is returning true. But see here, this one, A is less than C. So A is less than C. It is returning suppose false. It is returning false means suppose C value is what? C value is 4 is less than 7. So suppose C value is 7 means here what is the meaning here? Here we try to understand A value is 4 is less than 7. So ये true नहीं है. This one is returning false. Here if you consider
A value is 4, 4 is less than 5. So ये जो कंडीशन है ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन फॉल्स है। अब देखिए ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है ना। और बीच में अगर हम लोग ये एंड ऑपरेटर लगा देते हैं, तो देखिए ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ये ओवरऑल रिटर्न करेगा फॉल्स, ये ओवरऑल फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर यही, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया कि ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 7 है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू और फॉल्स रहेगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे जब वैल्यू चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये सारे वैल्यू चेंज हो जाएंगे, see here, so it is disconnected, ये डिस्कनेक्ट हो गया था, so it's our bad luck. Now see here everyone, so my point is, yes everyone, confirm me, everyone is, so see here everyone, the point here is A, B, C. So suppose A is less than B, A is less than C, right? So sometimes it is returning true, both are returning true, sometimes both are returning false. Yes. Now see here everyone, so yes, Chirag, after everyone start the video, yes, voice is audible or not? Yes, yes, audible. Yes sir, then you have to tell something, बीच बीच में आपको बोलते रहना होगा, यस आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो आप लोग पूरे शांत हो जाते हैं। ठीक है, सो सपोज 3 नंबर्स आर देयर, इससे पहले मैं बता रहा था क्या था, ए का वैल्यू कुछ दे दिया था, अब मैं वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ये वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी जब वैल्यू होगा तो ए लेस देन बी कभी ट्रू भी हो सकता है, ए लेस देन बी एंड ए लेस देन सी, समटाइम्स बोथ आर ट्रू, sometimes both are false, sometimes this is true and this is false, and sometimes this is false, this is true. Now try to understand here, अगर यहाँ पर मैं and लगाता हूँ, and means यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये जब अगर यहाँ पर and रहेगा तो ये अगर ट्रू है और ये भी ट्रू है तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, ये रिटर्न फाइनली इट विल रिटर्न द ट्रू। अगर देखिए ये दोनों का दोनों फॉल्स है, अगर एक भी फॉल्स रहेगा ना, ये देखिए ये एक कंडीशन है, दिस इज अनदर कंडीशन, दो कंडीशन को हम लोग ज्वाइन किए हैं साथ में एंड ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है ना। सो ये एंड ये दोनों फॉल्स है, जब दोनों फॉल्स कंडीशन रहेगा तो फाइनली कंडीशन का आंसर फॉल्स ही आएगा, ठीक है ना। अगर एक भी फॉल्स रहे तो हमारा फॉल्स ही आएगा। यहाँ पे देखिए ये ट्रू है या फॉल्स है, एक कंडीशन फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है ना। सो ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन, ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू हो, तभी जाके ये ट्रू होगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. बट सी यार, ये रिजल्ट जो है चेंज हो जाएगा कब, ए लेस देन बी गए, ये फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर एंड ऑपरेटर था, यहाँ पर मैं और ऑपरेटर करते हैं, दिस वन इज और ऑपरेटर, ये एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर। सेम ईयर अगर ये रहेगा तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों वैल्यू ट्रू है तो ये फाइनली ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और दोनों का एक भी ट्रू रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, एक भी ट्रू रहेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले यहाँ पे बीच में और ऑपरेटर है, इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं। एंड ऑपरेटर का रिजल्ट जो होगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ये देखिए दोनों का दोनों फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया, वन इज फॉल्स हियर सो दिस इज फॉल्स, दिस वन इज फॉल्स सो फॉल्स, एंड हियर इन केस ऑफ और ऑपरेटर दिस वन, इफ एनी वन इज ट्रू then the final result is true. See here both are true, so true, both are false means false, any one is true, अगर एक भी true हो so it is true. See here this one is true so it is true. So these things are clear to everyone? Yes, sir, clear. Now come to the flow Yes, chart. sir, clear. Now the flow chart is here up to here, sorry, now the flow chart is
This one is the flow chart. This one up to here, this flow chart is. So that means what? Here I am checking two condition. I am checking two condition. Earlier अभी तक हम लोग जो भी कंडीशन लिए थे एक ही कंडीशन चेक करते थे, 2 नंबर आता था. अब हमारे पास 3 नंबर है. तो दो कंडीशन साइमल्टेनियसली, सॉरी नॉट साइमल्टेनियस, दोनों कंडीशन को हम एक ही बार में चेक कर रहे हैं. समझ में आ रहा है ना? तो ये जो ओवरऑल कंडीशन है, सी हियर दिस वन इज वन कंडीशन, समझ रहे हैं, ए लेस देन बी, और ये बीच में एंड ऑपरेटर है, और ये क्या है, ए लेस देन सी एक अनदर कंडीशन है. तो ये दो कंडीशन को मैं एक ही साथ क्या कर रहा हूं, मर्ज करके फाइनल इसका, ये क्या ओवरऑल कंडीशनल बॉक्स है, डिसीजन बॉक्स है. डिसीजन बॉक्स ऑलवेज ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है. तो ओवरऑल ये या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. सपोज आइदर इट इज रिटर्निंग ट्रू, आइदर, यहां से आप देखिए, एवरीवन सी हियर दिस वन. सो दिस वन, यहाँ पे अगर आप देखिएगा फाइनल रिजल्ट देखिए, तो फाइनल रिजल्ट क्या रिटर्न कर रहा है, या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है ना. इस केस में भी जाइए या इस केस में भी जाइए, दोनों के केस में या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. सो ऑलवेज डिसीजन बॉक्स, आपको ये भी पता है कि ऑलवेज डिसीजन बॉक्स विल रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स. सो सपोज आई एम टेकिंग दिस वन पार्ट, इट इज रिटर्निंग ट्रू. अगर ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, so if it is returning true means what? Read A is the smallest number. A is smallest number. समझ में आ रहा है? अगर ये रिटर्न ट्रू कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? It is, if it is returning, if it is returning true means the number A is the smallest number. Smallest number. Point is clear to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, A is the smallest number. Now false का मतलब क्या होगा? False means, see here, that means it is clear that A is the smallest number. A is the smallest number here. Now false means we will come to this side. यहाँ पर हम लोग, this side is when it will return true. So come to edit, somewhere text is there. Is it visible to anyone? Yes, sir. So here, suppose this one is returning true. Just wait, I am checking where it is text box. One option will come in the text box, you can write. So that is not our main point of here also. See here. So the next one is, suppose this side it is returning false. So returning false means what? अब ये false रिटर्न करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस साइड में आएंगे, अगेन हम लोग चेक करेंगे. अगेन क्या चेक करेंगे? कंडीशन. कौन सा कंडीशन? अब हम लोग चेक करेंगे कि A जो है लेस देन नहीं है. इस साइड में तभी आएंगे जब A स्मॉलेस्ट होगा, और इस साइड में तभी आएंगे जब A स्मॉलेस्ट नहीं होगा. समझ में आ रहा? ये फॉल्स हो गया. ट्रू का मतलब इधर है, मतलब A स्मॉलेस्ट है, और इस साइड आया मींस फॉल्स साइड आया. मतलब क्या हुआ कि A स्मॉलेस्ट नहीं है, तो A स्मॉलेस्ट नहीं है, और मेरे पास टोटल 3 नंबर्स है, तो कौन स्मॉलेस्ट हो सकता है? या तो B या तो C. यस सर, नो? Yes, sir. Yes, sir. True means we are coming to this side. This side means A is smallest. False means we are coming to this side. देखिए इस साइड का मतलब क्या हो कि A स्मॉलेस्ट नहीं है, तभी हम लोग आएंगे इस साइड. इस साइड हम लोग तभी आएंगे, फॉल्स साइड हम लोग तभी आएंगे जब A स्मॉलेस्ट नहीं होगा. A स्मॉलेस्ट नहीं होगा, इसका मतलब मान लीजिए 3 स्टूडेंट्स हैं. सपोज निधि इज देयर, दिस वन आस्था इज देयर, एंड वन मोर चिराग इज देयर. सो सपोज द हाइट, अगर हम लोग हाइट को कंपेयर करें, ठीक है ना, तो अगर मुझे ये पता है पहले से ही कि चिराग का हाइट जो है निधि और क्या है, निधि और आस्था से छोटा है, ठीक है ना, तो अब मेरे पास क्या 2 ऑप्शन बचा. इसका मतलब यही हुआ कि अब मेरे पास 2 ऑप्शन है. क्या ऑप्शन बचा? निधि और आस्था. अब ये निधि और आस्था में हमको क्या है, अगर मुझे ये पता है कि चिराग का हाइट जो है निधि और आस्था से छोटा है, इसका मतलब हुआ कि बड़ा दोनों में से कौन होगा, या तो निधि या
आस्था का ही हाइट बड़ा होगा। ये तो ऑटोमेटिकली लॉजिक हो गया ना। ये अगर दोनों से हाइट कम है तो ऑटोमेटिक बड़ा हाइट किसका होगा, या तो आस्था का या तो रानी का होगा, आस्था या निधि का होगा, यही होगा ना। यस सर। ऐसे ही यहाँ पर 3 नंबर्स है। अब हम लोग ट्रू साइड में आते हैं, तो हमको ये पता है ट्रू साइड में तभी आएंगे जब ए हमारा स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है ना। तो फॉल्स साइड में आएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 3 नंबर है, तो पता चल रहा है कि बी और सी ही स्मॉलेस्ट होगा, या तो बी स्मॉलेस्ट होगा या तो सी स्मॉलेस्ट होगा। तो अगेन हियर आई विल check one, I will take one decision. I will determine whether B is smallest or C is smallest. So see here again I am checking here. What I am checking is B is less than A and B is less than C. ठीक है ना। तो फिर हम चेक करें कि क्या B A से छोटा है and B is less than C. अब देखिए B जो है छोटा तभी होगा, B जो है छोटा तभी होगा या तो B A से भी छोटा हो और B C से भी छोटा हो। समझ रहे हैं? Yes sir, something. So B is smallest. और वहां पे एक और पॉइंट है, इतना आपको नहीं करना। यहाँ हमको पता है कि या तो B छोटा होगा या तो C छोटा होगा, ठीक है ना, ऑलरेडी पता है। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। हम लोग डायरेक्ट चेक कैसे भी कर सकते हैं, इज B इज लेस देन C। अगर B C से छोटा है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है ना। So is B is less than C? This one is one condition. Again I am checking here, is B is less than A or not? अगर B C से भी छोटा है और B A से भी छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, B जो है स्मॉलेस्ट नंबर होगा। अगर ये कंडीशन चेक करें, is B is less than C and B is less than, अगर ये ट्रू रिटर्न करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि B is the smallest number. Read, B is the smallest number. Yes or no? Yes sir. Smallest number. B is the smallest number. B is the smallest number. ठीक है। अगले क्लास में इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कराएंगे, अभी इतना ही समझिए, नहीं तो कंफ्यूज कर दिएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास इससे भी हम लोग छोटा इसको कर देंगे, ठीक है ना। See here, so B is the smallest number, so it is returning true is B is smallest. Now come to this false side. So false side में आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये C यहाँ से ये अगर ट्रू करेगा तो इधर आएंगे A स्मॉलेस्ट होगा, और फॉल्स का मतलब इस साइड आएंगे, मींस आइदर B या C स्मॉलेस्ट होगा, या तो B या तो C स्मॉलेस्ट होगा। और इस साइड में मुझे पता चल गया कि B स्मॉलेस्ट है, तो फॉल्स साइड में क्या होगा, ऑटोमेटिकली यस C is smallest. अब मुझे पता चल गया कि चिराग जो है का हाइट छोटा है निधि और किससे, आस्था से, ठीक है। और फिर मुझे इसके बाद पता चला कि आस्था का हाइट जो है छोटा है निधि से। तो ये ऑटोमेटिकली हो गया क्या, आस्था का हाइट किससे छोटा है, चिराग का हाइट जो है दोनों से छोटा है, और आस्था का हाइट निधि से भी छोटा है, ठीक है ना। तो थर्ड जो बचा वही हो गया ना, ऑटोमेटिकली उसको कुछ ये नहीं करना है। Here, point here, try to understand what I am saying is, suppose remove this one. Chirag is there. चिराग का हाइट क्या है, आस्था से भी कम है, और चिराग का हाइट क्या है, निधि से भी हाइट शॉर्ट है। और पता चला कि निधि का हाइट क्या है, आस्था से छोटा है, ठीक है ना। चिराग का हाइट क्या है, आस्था से भी छोटा है और निधि से भी छोटा है, और निधि का हाइट क्या, आस्था से भी छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आस्था का हाइट सबसे बड़ा है ना, हुआ ना। सी यार, चिराग का हाइट क्या है, चिराग का हाइट जो है निधि से छोटा है। ये कंडीशन यहाँ से देख, चिराग का आस्था से भी छोटा और निधि से भी छोटा, और निधि का हाइट क्या, आस्था से भी छोटा है। यहाँ पे देखिए, चिराग का हाइट निधि से छोटा है और निधि का हाइट आस्था से छोटा है, ठीक है ना। अभी इस पॉइंट को देखिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। चिराग जो है हाइट निधि से भी छोटा है, और ठीक है ना, और चिराग का हाइट देखिए आस्था से भी छोटा है। क्यों, क्योंकि निधि का हाइट आस्था से भी छोटा है। समझ में आ रहा है ना, इसको न्यूमेरिकली समझिए। लेस देन 3 इज लेस देन 4, सो 2 अगर 3 से छोटा है
और 3 4 से छोटा है, तो 2 इज ऑल्सो लेस देन 4. यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. माई पॉइंट हियर इज, तो यहाँ पर आप देखिएगा चिराग का हाइट आस्था से भी छोटा और निधि से भी छोटा है, और निधि का हाइट क्या है, आस्था से भी छोटा है. तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या, कंक्लूजन क्या निकला, हमारे पास यही दो कंडीशन दिया हुआ. इस कंडीशन से हम लोग फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आस्था जो है हाइट जो है ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबसे बड़ा होगा. समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. So sir. same here also. So 2, हमारे पास ऑलरेडी दो कंडीशन मैंने निकाल लिया कि ए जो है स्मॉलेस्ट कब होगा, हियर इन दिस साइड. वेट फॉर अ मिनट. See this one, everyone. So this side A is the smallest number, here B is the smallest number. अब बच्चा जो बच गया, रिमेनिंग जो है क्या है, C ही बचा, 3 ही नंबर है, 3 कैंडिडेट है हमारे पास, इनपुट मैंने 3 लिया है, ठीक है ना. सो रिमेनिंग इज, जो बचा नंबर वही क्या होगा, रिमेनिंग नंबर इज व्हाट, प्रिंट C is the smallest number, print C is the Smallest number. smallest Number. number, ठीक है ना. So C is the smallest number. So this one is clear to everyone. अब सारे लोग बना सकते हैं ना. इसी को हम होमवर्क फिर से देंगे, क्योंकि आपको अब समझ के बनाना है. यही क्वेश्चन रहेगा स्मॉलेस्ट के लिए और ग्रेटेस्ट के लिए भी दे देंगे. तो 2 क्वेश्चन हो जाएगा एज ए होमवर्क ऑल्सो आपका, ठीक है ना. Yes, sir. And now Yes, sir. आफ्टर दिस एवरीवन, आप लोग सारे लोग को पता ही क्या करेंगे, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट है, सारे को हम लोग कनेक्ट कर देंगे स्टॉप बॉक्स. Connect करके end करना है. कनेक्ट करके एंड से हम लोग सारे को ऐड कर देंगे. सो एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस मींस क्वेश्चन? स्टिल एनीवन हैव एनी डाउट? अभी भी किसी No, को sir. नाउ एवरीवन कैन डू इट बाय Yes, योर, sir. नो कॉपी Yes, पेस्ट sir. इंटरनेट. No, sir. कॉपी पेस्ट इंटरनेट से क्या होगा ना, सब कुछ इंटरनेट पे नहीं दिया रहता है, ठीक है. सो हियर यहाँ पे अगले क्लास में हम चेंज कराएंगे, ठीक है ना. यहाँ पे भी कुछ चेंज कराएंगे. अभी आपके लिए मैंने इजी कर दिया है क्योंकि आप कंफ्यूज कर दीजिएगा. सो हियर आई हैव मेड इट इजी, बट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस हियर आल्सो सम स्मॉल लॉजिक. यहाँ पे भी कुछ ट्रिक बताएंगे जिससे क्या होगा, ये डबल कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़े, सिंगल कंडीशन लिखेंगे, ठीक है ना. बट Yes, sir. Yes, sir. now everyone is comfortable up to here. Yes, sir. Now, so Yes, sir. only 6 minutes is left. Next class, in the next class we will discuss the Q basic. Q basic, अगर जिसको फ्लो चार्ट एल्गोरिथम में डाउट है उसको Q basic थोड़ा भी नहीं समझ में आएगा, 0%, ठीक है ना. अगर Q basic, अगर किसी को अगर डाउट है फ्लो चार्ट एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में, अगर जिसको डाउट है वो अभी भी हमारे पास 1-2 क्लास हम दे सकते हैं. अगर नहीं जिसको क्लियर होगा तो Q बेसिक में दिक्कत होगा. समझ में आ रहा है? तो सारे लोग रिवाइज कर लीजिएगा. यस सर.